فوج CRPF اور SOG نے ترال نے پستونا سیر جنگلات کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس دوران ملیٹنٹوں کی ایک کمین گاہ کو تباہ کیا گیا۔ SDPO ترال کے مطابق اس کمین گاہ کو حزب المجاہدین کے ملیٹنٹ استعمال کر رہے تھے۔ کمین گاہ سے کچھ اشیاء خوردنی، بستر اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ ایریا ہے جہاں ہم نے ایک ہائیڈ آؤٹ جو ہے 5 فیٹ بائی 7 فیٹ بائی 4 فیٹ ایک ہائیڈ آؤٹ جو ہے نا بسٹ کے، تو اس میں ہمیں جو ایڈم ریلیٹڈ مٹیریل ہے جیسے یوٹینسلز ہے، بستر ہے، باقی چیزیں، فوڈ آئٹمز ہے، فوڈ کورس ہے، باقی چیزیں ملی۔ امیجیٹلی ہم نے اس کو ڈسٹروائے کیا۔ تو یہ جو ہماری مطلب فیلڈ کے سورس کے حساب سے ہے، یہ حزب المجاہدین کی ایک ہائیڈ ہے جس میں یہ رہتے تھے مطلب ان دی پاسٹ۔ جموں کشمیر میں پیش آئے 2 علیحدہ واقعات میں 2 فوجی جوانوں کی موت ہوئی ہے۔ راجوری میں چاوا علاقے کے قریب فوجی کیمپ ایک فوجی جوان کی لاش خون سے لت پت پائی گئی۔ فوجی جوان کی شناخت 55 انجینئر ریجیمنٹ کے نشانک سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ سری نگر کے کھنوا میں بھی ایک فوجی افسر نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار لی۔ ذرائع کے مطابق آفیسر کی شناخت سدیپ بھگت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزراء اور NC صدر فاروق عبداللہ کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ دفعہ 370 سے متعلق فاروق عبداللہ کے بیان کے خلاف عرضی پر عدالت نے کہا کہ حکومت وقت کی رائے سے اپنی الگ رائے رکھنا بغاوت نہیں ہے۔ عدالت نے فاروق عبداللہ کے خلاف دائر کردہ عرضی کو نہ صرف خارج کر دیا بلکہ عرضی گزار پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عرضی گزار اپنے دلائل ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کے پورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے دوارا آرٹیکل 370 پر دیے گئے بیان کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی گئی تھی۔ بہرحال سپریم کورٹ نے اس یاچکا کو خارج کرتے ہوئے یہ کہا کہ سرکار کے دوارا دیے گئے رائے سے الگ رائے رکھنا ابھیویکتی کی آزادی میں شامل ہوتا ہے اور ایسے میں کسی کو دیش دروہی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے نہ کیول یاچکا کرتا کی یاچکا کو خارج کیا بلکہ یاچکا کرتا پر 50,000 روپے کا جرمانہ لگایا۔ آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں ایک یاچکا داخل کی گئی تھی جس یاچکا میں یہ کہا گیا تھا کہ فاروق عبداللہ کے دوارا دیے گئے بیان سے بھارت کے ایک اہم حصے میں کہیں نہ کہیں وواد اتپن ہوا ہے اور ایسے میں ان کے خلاف دیش دروہ کا مقدمہ چلایا جائے۔ کیمرامین جگدیش گوتم کے ساتھ سشیل پانڈے، نیوز 18 دلی۔ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے میر وائز منزل راجوری کدل میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ مجلس کے بانی اور چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق کی مسلسل نظر بندی کے تناظر میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں سماجی، تعلیمی اور تجارتی اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوئے۔ تمام شرکاء نے میر وائز کی نظر بندی پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا کہ میر وائز کی نظر بندی سے جموں کشمیر کے سب سے بڑے مذہبی اور روحانی مرکز جامع مسجد سری نگر کے ممبر اور محراب دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گزشتہ 82 جمعے سے خاموش ہیں۔ گزارش کران گورنمنٹس کہ سون سربراہ تو بیٚیہِ سون میر وائز مولانا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب مدذلہ العالی ہم گژھن ان فوری رہا عمر فاروق صاحب رہا کرنے اور ات پہ پوری امید متوقع ضرور توقع یہ تھاوان کہ انشاءاللہ اقرب وقت اندر قریبی وقت اندر آسن تم ایسے اندر موجود اس کو رہا کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں خصوصاً ماہ رمضان میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ غلام نبی آزاد کے حالیہ بیان کے بعد جموں کشمیر کانگریس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف حصوں کے آزاد حامیوں نے مانگ کی ہے کہ آزاد کے خلاف احتجاج کرنے اور ان کا پتلا نظر آتش کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس کے ان لیڈران نے آزاد کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد نے جموں میں ایک تقریب کے دوران وزیراعظم کی تعریف کر کے کچھ غلط یا کوئی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے بھی پارلیمنٹ میں آزاد کی تعریف کی تھی مگر بی جے پی میں کسی نے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ لیڈران نے شہنواز چودھری اور دیگر پر آزاد کے خلاف احتجاج کر کے پارٹی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پردھان منتری صاحب نے اگر آزاد صاحب کی تعریف کی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے،
उसके करेक्टर की तारीफ़ की, उसने कांग्रेस पार्टी की नहीं की। फिर उसके बाद जितनी अपोजिशन पार्टियां वहाँ थी उन सब ने आज़ाद साहब को अच्छा कहा है, उनकी तारीफ़ की है। तो आज़ाद साहब ने यहाँ मोदी साहब के लिए कोई इतना बड़ा लफ्ज़ नहीं कह दिया था कि जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप आज़ाद साहब की तकरीर, आप मेरे ख्याल में वहाँ थे, आप सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने मेरी कम्युनिटी को एक सीख दी है कि आप अपने ही घर को मत भूलिए, जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब अपने घर को नहीं भूलिए। नबी आज़ाद साहब तो कांग्रेसी हैं ना, उनके खिलाफ पुतला उनका जलाने वाले, उनके खिलाफ नारा लगाने वाले कांग्रेसी नहीं हो सकते। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये पेड़ लोग हैं, आपको पता लग जाएगा, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारा कांग्रेस का एक डिसिप्लिन है। मैसेज तो कोई भी गलत जाता है, लेकिन ये बात करना कि इसका मैसेज गलत जाएगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर की क्यों तारीफ कर दी, आपने फलाने जनरल की क्यों तारीफ कर दी, ये कोई बात है कहने की? नहीं, ये बात नहीं कहने की कि प्राइम मिनिस्टर हमारा विशाल मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने आउट ऑफ वे गुलाम नबी आज़ाद की पार्लियामेंट में तारीफ की, रोया। तो हम क्यों कहें तुम क्यों रोया? बीजेपी ने कभी कहा उसको कि तुम क्यों रोया भाई कांग्रेस के लिए? कहा किसी ने? पसियों के गिर आने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कम से कम 8 घंटों तक बंद रही। इसके बाद आज शाहराह पर ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया गया। आज मामूल के ट्रैफिक में ट्रैफिक को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत थी। शाहराह के बंद होने की वजह से भारी ट्रैफिक जाम का मसला दरपेश रहा। डीएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे बानिहाल शमशेर सिंह ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि सुबह 3 बजे बानिहाल के नजदीक शावनबास के मकाम भारी मलबे पर मुश्तमिल एक पसी सड़क पर गिर आई और एक टैंकर पसी के बीच फंसकर नाले की तरफ गिरने लगा था। तामीराती कंपनी की मशीनरी की मदद से खाली टैंकर को बाहर निकाला गया। JAKFED से मुंसलिक मुलाजमीन ने श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन उनकी बकाया तनख्वाह वागुजार करने और 7वें तनख्वाह कमीशन को लागू करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि 19 माह से उनकी तनख्वाह बंद है। एहतजाजी मुलाजमीन की मांग है कि उन्हें दूसरे सरकारी महकमों में जम किया जाए। उनका कहना है कि JAKFED को बंद करने की वजह से ऐसा किया जाना चाहिए। हालात क्या है कि हमारा इस वक्त फ्यूचर जो है वो खतरे में है। अगर गवर्नमेंट हमारा ये फैसला लेने में कुछ कतरा करती है तो फिर हम मजबूर है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब के टेबल के सामने जाकर अपनी दाद रसा करेंगे। और मैं उम्मीद है आपकी वसाकत से चीफ सेक्रेटरी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे ये नवीन चौधरी साहब, वो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड लिया, हम उनका अप्रिशिएट करते हैं। टाइम टू टाइम उन्होंने हमें हौसला दिया कि अब भी इस वक्त अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर को ये बचाने के लिए। जिला गांदरबल की आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने श्रीनगर में एहतजाज किया। यह एहतजाजी उनके माहाना मुशाहिरे में इजाफे की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को काफी अरसे से किराए पर लिए गए कमरों का किराया भी अदा नहीं किया गया है। एहतजाजियों ने मांग की कि उनके मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि आज की बढ़ती हुई जो महंगाई को देख रहे हो आप, इसको देखकर हमारा जो माहाना मुशायरा है उस पर हमारा कोई गुजारा नहीं होता है। उस पर हम बहुत सारे वर्कर्स डिपेंडेंट हैं जो अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 4000 में हम क्या करेंगे और हमारी हेल्पर 2000 में क्या करेंगे? जो हेल्पर आज इसको ऑफिसर लोग बोलते हैं कि हमारी न्यूट्रिशन तैयार रखो, 1200-1100 में गैस सिलेंडर आ रहा है। ये बेचारी कोई यहाँ से कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि आज उनका मकान मुतासिर है। पूरे एक कमरा देना होता है आंगनवाड़ी सेंटर को, इनका पूरा मकान मुतासिर है। उनकी रेंट रुकी पड़ी है 2-2.5 सालों से। बांडीपुरा के गुरेज बख्तूर इलाके में प्राइमरी हेल्थ मरकज में काम करने वाले आरजी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया है। इन आरजी मुलाजमीन का कहना था कि वो सालों से इस दुश्वार गुजार इलाके में तनदही से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। एहतजाजियों ने मांग की कि उन्हें कम से कम उजरतों के एक्ट के दायरे में लाया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर, कंसोलिडेटेड नीड बेड्स वगैरह वगैरह, लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें भी मिनिमम वेजेस में लाना चाहिए क्योंकि हमने कोविड-19 में भी काम किया है, खुद पॉजिटिव भी आ गए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी मांगें पूरी करो।
हम पिछले 20 साल से डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा फारफरंग एरिया गुरेज में काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से मोदबना गुजारिश करते हैं कि हमें कम से कम मिनिमम वेज एक्ट में लाया जाए, क्योंकि हम फ्रंट लाइन कोर्ट में भी काम कर रहे हैं, इवन कि हम बहुत सारे पॉजिटिव भी इसमें आए। अभी हमारी ये मांग है कि हमें कम से कम मिनिमम वेज एक्ट में लाया जाए। पुंछ के मंडी तहसील के मेन बाजार में चोरों ने गुज़िश्ता रात 4 दुकानों में चोरी की। दुकानदारों के मुताबिक आज सुबह जब वो अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने दुकान के ताले टूटे हुए पाए और जब वो अंदर गए तो सामान बिखरा पाया और कीमती सामान गायब था। दुकानदारों में बरहमी पाई जा रही है। उन्होंने पुलिस से चौकसी बढ़ाने और चोरों का जल्द पता लगाने की अपील की है। ताले बंद करके चले गए थे, उसके बाद हम सुबह आए जब यहाँ के हमारे 4 दुकानों के ताले जो है वो काटे गए हुए थे। इसमें हमें ये पता लगता है ये चोर है और साथ में पुलिस का भी पुलिस की लापरवाही की वजह से ये ऐसे बात। यहाँ पे कोई इस चीज़ को मतलब देख नहीं रहा है कि ये चोरियाँ कैसे हो रही हैं, तह तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकते। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं, तो इस पे सर यहाँ पे गौर नहीं किया जाता। जनाब SHO साहब से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मजीद जो पुलिस की मतलब तैनाती की। वेयर हाउस जम्मू में ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फेडरेशन के कारकुन श्रीनगर में ताजिर बरादरी के 2 गैर मकामी अफराद को मिलिटेंटों की तरफ से हलाक किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। फेडरेशन ने सतपाल निश्चल और आकाश मेहरा के कातिलों को ढूंढ निकालकर उन्हें सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। फेडरेशन ने इन हलाकतों की तहकीकात का भी मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मांग की कि वादी में गैर मकामी कारोबारियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वहाँ ट्रेड नहीं होगा तो हम लोग कहाँ व्यापार करेंगे। कश्मीर के व्यापारी जम्मू के व्यापारी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अक्सर कश्मीर के व्यापारी जम्मू आते हैं और जम्मू के व्यापारी कश्मीर जाते हैं, लेकिन हत्याओं के कारण जो दहशत का माहौल बना हुआ है, जम्मू का व्यापारी जाने से अनसेफ मान रहा है। और मुझे लगता है इससे काफ़ी हमारे व्यापारियों को, कश्मीर के व्यापारियों को भी नुकसान होगा और जम्मू के व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।